Hello everyone, good morning to all. This is Srija Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss your NCERT book, chapter number 11. Our chapter name is Light, Shadow and Reflection. It's a very important chapter, okay? What is light, how we use a light, and what different type of object, how shadow form, and most important point is what is reflection, okay? So we discuss about a one by one point, okay? Now we see so many objects around us. On the way of school, we see things like bus, car, cycle, tree, animals, and sometimes फ्लावर. देखिए यहाँ पर ये है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हाउ डू यू थिंक वी सी, आप क्या सोचते हो कि हम कैसे देखते हैं. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आईज. सबसे पहले तो हमारे पास आईज होनी चाहिए किसी भी चीज को शो करने के लिए, देखने के लिए. सेकेंड टर्म है कि एसेंशियल क्या है, लाइट है. मे बी किसी भी स्पेस पे लाइट है तो वी कैन एबल टू सी एनीथिंग, ओके. तो सो थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट. आप जो आपको डे टाइम पे कार, बसेस और ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप नाइट में डार्क में देखने की कोशिश करें. भाई नाइट में भी लाइट तो होती है, लेकिन आप डार्क रूम में देखने की कोशिश करें तो यू आर एबल टू सी इट, नो, है ना. दैट्स व्हाई वी नीड अ लाइट to see anything, to see any object, okay. First, when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room. एक dark room में आप वैसे देखते हो तो आपको कुछ भी, you can't able to see anything, है ना. लेकिन when you lighted the candle, when you switch on the torch, you able to see the different type of object which are present inside the room. ओके, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. हमें लाइट नहीं होगी तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट हमें हेल्प करती है क्या करने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. जो टॉर्च बल्ब है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को देखने में हेल्प करता है. टॉर्च बल्ब खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट है, ओके. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट टर्म पे. टू डेफिनेशंस आर देयर. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके. हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि दोज ऑब्जेक्ट्स which emit light of their own. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को emit करते हैं, these are called a luminous object, okay. Or those objects which don't emit their own light are called a non-luminous object, okay. Sun is a luminous object, star is a luminous object, candle, okay, bulb, light, torch, फायरफ्लाई जानते हो, जुगनू, जिनके पास भी अपनी खुद की लाइट होती है ना. तो दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, okay. Sometimes some students confuse regarding the moon. Moon is a non-luminous object. What I say, moon is a non-luminous object, okay. आपने एसएसटी के अंदर भी रीड किया होगा कि moon doesn't have a own light. वो अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. तो moon reflected the sunrise, so moon doesn't have their own light. That's why moon is a non-luminous object, okay. Remember रहेगा, moon is a non-luminous object because moon doesn't have a own light, okay. moon क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसकी, सन की लाइट को. That's why moon is a non-luminous object, okay. non-luminous के different type of example है chair, shoe, है ना, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ये लाइट तो एमिट नहीं करते ना, ओके. नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. दिस पॉइंट वी डिस्कस इन लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने सब क्लासेस में रीड किए. So what is transparent object, what is opaque object, what is translucent object. I think you all are very well known about this. Transparent, translucent and opaque, okay. Yes, anyone give me answer, what is opaque object? Please raise your hand. Yes, Lakshya. Yes, very good. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. What? कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देता, ओके. these objects are called opaque object. if you are able to see clearly through an object, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में से एकदम क्लियरली देख सकते हो, why?
देखो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइट की रिक्वायरमेंट थी ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो अपने अंदर से कंप्लीट लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, बट इन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट विच आर पार्शली लाइट को गो थ्रू होने देते हैं, दैट्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होते, तो दैट्स व्हाई वी कांट एबल टू सी इनसाइड द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते, थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट हम नहीं एबल हैं देखने के लिए, ठीक है। तो we have a different type of examples are opaque object, just like a book, table, chair, all things are opaque object. What is translucent, sorry transparent? Transparent glass जो है वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसल्यूसेंट। बटर पेपर जो होता है ना, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एक्टिविटी 1, ये कह रहे हैं भाई हम इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। Through each of these objects, it is light far away object able to travel to your eye through any object. तो आप ये सब चीजों को कलेक्ट करें, then differentiate करें which one is transparent, which one is translucent, and which one is opaque object. Okay. Now we move to a next and very important point. What exactly is our shadow? Shadow exactly होती क्या है? ठीक है, देखिए आपने अपनी शेडो को देखा होगा, तो कहां पर शेडो बनती है, जो लाइट को पास थ्रू होने देते हैं आपका बॉडी पार्ट वहां से, या जो उसको ब्लॉक कर देता है लाइट को। तो जो रास्ता लाइट को ब्लॉक करता है उस जगह पर क्या बनती है, हमारी शेडो बनती है। इसीलिए एक शेडो की डेफिनेशन में कहा है, द डार्क पैच फाउंड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। जो डार्क पैच बनता है ना ग्राउंड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। और शेडो हमेशा किसकी बनेगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। बताओ लाइट को अपने अंदर से गो थ्रू होने कौन नहीं देगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, That's why shadow form through a opaque object. Shadow हमेशा form कौन करता है, opaque object करता है। Spread a sheet of paper on the ground and hold a familiar opaque object at some height so that a shadow is formed on the sheet of the paper on the ground. आपको एक शीट रख लें पेपर पे, सॉरी ग्राउंड पे, और उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखें, opaque ऑब्जेक्ट को, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, तो आप चेक कर सकते हैं कि किनकी शेडो फॉर्म होती है। तो वी ऑब्जर्व दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स की जो है वो शेडो फॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को अपने अंदर से गो थ्रू नहीं होने देता। ओके, सॉरी, तो इस वजह से शेडो जो है ओपेक ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है। नाउ आस्क सम फ्रेंड्स एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शेडो। अब जो शेडो है उसकी आउटलाइन को देखते हुए आपके फ्रेंड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली? क्या शेडो को देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो शेडो है वो कौन से ऑब्जेक्ट का बना है? समटाइम्स और समटाइम्स नॉट, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ना। तो डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट? आपने कभी अंधेरे कमरे में अपनी शेडो देखी है क्या, नाइट वाले टाइम पे, व्हेन देयर इज नो लाइट, जब वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, नो। सो डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? जब आपके सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, अब हमारी शेडो फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फर्स्ट थिंग लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन एंड अ स्क्रीन, जिसके ऊपर शेडो बनेगी। भाई ग्राउंड भी हो सकता है, वो कोई पेपर भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है, स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक स्क्रीन जिसपे शेडो फॉर्म होगी। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या कुछ और भी रिक्वायर्ड है? तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3rd। Yes, this is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out in an open ground with your few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward, and its light fall on your friend's face. You know, have a source of light that is falling on an opaque object. If there is no tree, building, or any other object behind your friend, आपके friend के पीछे किसी भी तरीके के इस तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड?
हेड, दिस नॉट बी मीन, आप अपने फ्रेंड का हेड देख सकते हो, सो दैट देयर इज नो शेडो, आपको कोई भी शेडो, ये स्क्रीन की इंपॉर्टेंस बता रहा है, स्क्रीन होनी क्यों जरूरी है। अब देखिए एकदम डार्क के अंदर आगे टॉर्च चलाना, आपका फ्रेंड है, आप पहले क्या था, कोई भी चीज नहीं थी, तो वहां पर आपको शेडो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, लेकिन एक आपका जो थर्ड फ्रेंड है वो कार्डबोर्ड को लेकर या शीट को लेके जस्ट बिहाइंड आपके फ्रेंड के पीछे की तरफ खड़ा हो जाएगा, कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड, सी इज शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, आपको कार्डबोर्ड शीट पे वो शेडो दिखाई देगी। लेकिन अगर ये गर्ल यहाँ से हट जाए और इस कार्डबोर्ड शीट को हटा दे तो वहां पर शेडो फॉर्म नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई वी सेड कि एक शेडो फॉर्म होने के लिए हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड, 3 थिंग्स आर स्पेशली रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स, फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स। ओपेक ऑब्जेक्ट, देखिए हमारी बॉडी जो है वो कैसी है, ओपेक ऑब्जेक्ट, हमारे आर पार थोड़ी दिखता है ना, हमारे से लाइट पास थ्रू थोड़ी हो जाती है, तो आर बॉडी इज ओपेक ऑब्जेक्ट, और देखिए कार्डबोर्ड जो है एज अ स्क्रीन वर्क कर रहा है। ओके, तो 3 things are required when we want to make a shadow. Okay, और ये डिफरेंट टाइप के, आप अपने हाथ को मूव करके डिफरेंट टाइप की शेडो से आपने प्ले भी किया होगा। Thus the shadow can be seen only on screen, the ground wall, अब वो स्क्रीन पे हो सकती है, वो स्क्रीन आपका ग्राउंड हो सकता है, वॉल ऑफ अ रूम हो सकती है, ट्री हो सकता है, बिल्डिंग, और सच सरफेस एक्ट एज ए स्क्रीन और द शेडो यू ऑब्जर्व इन डेली एवरीडे लाइफ। आपने डेली एवरीडे लाइफ में देखो आपकी ये जो शेडो कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, वो सब चीजें जो है एज अ स्क्रीन वर्क करती है। ओके, शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेडो से हमारे को कुछ शेप का इंफॉर्मेशन मिल जाती है। समटाइम शेडो कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ शेडो। अब जैसे इस शेडो को देखकर तो हमें लगेगा ये कोई बर्ड है ना, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, हमारे हाथ है ना, तो ये मिसलीड भी कर जाती है। शेप मतलब एक्चुअल शेप जो है वो उसी चीज की शेडो होगी, ये भी जरूरी नहीं है कि ये सही है ना। तो इसलिए हमने कहा कि समटाइम शेडो कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर अ फ्यू शेडो दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड, मेक बिलीव दैट दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हम जैसे अपने हाथ से डिफरेंट टाइप की शेडो बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डिफरेंट टाइप की एनिमल्स है, बट एक्चुअल में क्या है, ये हमारे हैंड है। Okay, now place a chair in the ground on a sunny day. What do you observe the shadow of chair? आप बाहर एक ग्राउंड में एक चेयर को आप प्लेस करें, देन उसकी एक्यूरेट जो शेडो बन रही है उसको आप चेक करें। ठीक है, शेप ऑफ द चेयर, इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? Take a thin notebook and look at this shadow, then take a rectangular box and look at its shadow. Do the shadow seem to be similar shape? हमेशा उस चेयर का जो रेक्टेंगुलर बन रहा है उस पे आप एक मार्क चौक से मार्क कर दीजिए। क्या हर बार हर थोड़ी देर में जब वो शेडो को देख रहे हैं तो क्या शेडो एक जैसी बन रही है? नो, देखो मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी सनराइज एंड सनसेट वाले टाइम पे शेडो कैसी बनती है बेटा? लॉन्ग बनती है, लंबी बनती है ना। बट इन आफ्टरनून सन एकदम अपर डायरेक्शन में हो जाता है तो उस टाइम पे शेडो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट बनती है। ओके, तो हमें लर्न रखना है, आफ्टरनून में शेडो सब आपसे पूछा जाए कि कौन से टाइम पे शेडो शॉर्टेस्ट होती है, तो इन आफ्टरनून। लॉन्गेस्ट कब होती है? अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, next thing about the shadow, take flower or other object of different color, look at their shadow. Suppose करते हैं आपने रेड रोज लिया है एंड सेकंड येलो रोज लिया है। ओके, अब ये रेड रोज और येलो रोज की जो शेडो फॉर्म होगी, क्या आप उस शेडो से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रेड कलर के रोज की शेडो है या येलो कलर के रोज की शेडो है? नो, तो यहाँ पर ये आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाह रहे हैं कि शेडो हैव अ डार्क पैच, शेडो का कोई कलर डजंट हैव अ एनी कलर, तो शेडो का कोई भी कलर नहीं होता है। ओके, टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड। अभी बहुत बड़ा बॉक्स ले लीजिए, उसके शेडो को ऑब्जर्व कीजिए ग्राउंड पे। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज। आप उस बॉक्स को जैसे जैसे घुमाएंगे ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपने लिया उसको घुमाएंगे तो उसकी शेडो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट? कब बनती है शॉर्टेस्ट? व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन और व्हेन द शॉर्टेस्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन। ओके, तो कब, जब हम सन की किस तरफ रख रहे हैं लॉन्ग बॉक्स को, जब जो शेडो बनेगी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे शेडो जो है लॉन्ग बनती है, एंड आफ्टरनून टाइम पे जो बॉक्स है कुछ भी उसका जो शेडो फॉर्म होगा वो कैसा होगा बेटा? शॉर्टेस्ट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, a pinhole camera, we discuss in a next class. Okay.